بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کور کریں گے ایسے لوگ جن کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، ہائپر یوریسیمیا ہو، تو اس کو آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی اگر آپ کو ہر ٹائم یورک ایسڈ کے پرابلمس رہتے ہیں۔ یورک ایسڈ اگر کسی کا زیادہ ہو تو اس میں ڈفرینٹ کنڈیشنز اور ڈفرینٹ سمٹمز آ سکتے ہیں، جن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کے سارے جوڑوں کے اندر درد ہیں، سارے جوڑوں کے اندر انفلیمیشن ہو، ریسٹرکٹیڈ جوائنٹ موومنٹ ہو، رینج آف موشن کم ہو جائے، یعنی جب وہ موو کریں تو ان کو درد ہو۔ نیکسٹ ان کے جو بگ ٹو ہے، یعنی کہ جو بڑا انگوٹھا ہے، پاؤں کا جو انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کی جڑ کے اندر موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کی درد ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی پین آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کی ایبڈومن، بیلی کے اندر، پیٹ کے اندر بھی درد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو یورک ایسڈ ہے اس کی زیادتی کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم اگر کھانا اس طرح کا کھا لیں، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم سے یہ صحیح سے رش آؤٹ نہ ہو، نکلے نہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیوں نہ نکلے؟ کڈنی، آپ کو گردوں کا اگر کوئی ایشو ہو اس کی وجہ سے۔ ساری چیزیں یہاں آج ہم ایک ایک کر کے کور کریں گے۔ اس طرح کے ٹوفے فارمیشن ہو سکتے ہیں، یہ جو آپ سوزش دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی سوزش ہو سکتی ہے ان لوگوں کو جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہو۔ چھوٹے جوائنٹس کے اندر یہ زیادہ تر ہوتی ہے، آپ کے پاؤں کے اندر زیادہ تر ہو سکتی ہے، اس طرح کی سوزش کی فیلنگز آ سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یورک ایسڈ ہے یہ بنتا کس طرح سے ہماری باڈی کے اندر۔ یورک ایسڈ بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر بنتا ہوتا ہے پیورین بیسس کی وجہ سے۔ پیورین بیسس اب کہاں سے آتی ہیں؟ وہ آتی ہیں سیل بریک ڈاؤن کی وجہ سے، یا ہماری ایسی کوئی ڈائٹ ہو جس کی وجہ سے جو کہ کنورٹ ہو کے پھر پیورین میں بنے، اور پیورین پھر آگے کنورٹ ہو کے یورک ایسڈ میں بنتی ہے۔ یہ جو پیورین آتی ہے آپ کے پٹھوں کی کانٹریکشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کا صرف نقصان نہیں ہوتا آپ کی باڈی کے اندر، یورک ایسڈ آپ کے لیے، جسم کے لیے ضروری بھی ہے۔ کیسے ضروری ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ اب پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کھانے جن کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک کھانا ہمارے پاس جو سب سے کامن ہے وہ پالک ہے۔ پالک کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو سبزی ہے، اس کے اندر تو یورک ایسڈ ہے، اس میں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ پالک کی زیادتی آپ کو یورک ایسڈ کاز کر سکتی ہے۔ ٹماٹر کی زیادتی یورک ایسڈ کاز کر سکتی ہے۔ دال آپ کو یورک ایسڈ کاز کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ مچھلی کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ ہو سکتا ہے، چکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور انڈوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پھر تو کوئی کھانا ہی نہیں بچا، پالک، ٹماٹر، دال، گوشت، مچھلی، مرغی، انڈا، تو پیچھے بچا کیا؟ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہی کھانوں کو کس طرح سے آپ نے کھانا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی نہ ہو، اور اس کے علاوہ کون سے کھانے ہیں جو کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس کو کھانے چاہیے کہ ان کی یورک ایسڈ کی زیادتی نہ ہو۔ کون سے کھانے ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے؟ وہ اس طرح کے کھانے جو کہ یورک ایسڈ کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ یہ کھانے ہیں جو یورک ایسڈ کو بڑھاتے ہیں، بٹ ان کو بھی ہم نے کھانا ہے۔ کیسے کھانا ہے یہی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب سوال آ جاتا ہے کہ اگر فرض کریں ہمیں ہے یورک ایسڈ کا پرابلم، تو کیا ہمیں جو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے یہ صرف ہمارے کھانوں کی وجہ سے؟ نہیں، یورک ایسڈ آپ نے باہر سے کھانوں سے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے جسم سے نکلا نہیں ہے نا تو بھی پرابلم ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے بڑے اچھے کھانے کھائے، ایسے کھانے کھائے جس کے اندر یورک ایسڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ تھوڑا سا بھی آ گیا ہے، پھر بھی بڑا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ وہ آرگن جو ہمارے جسم سے یورک ایسڈ کو ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں یورک ایسڈ کا پرابلم آ سکتا ہے۔ کڈنی پرابلم کے پیشنٹس کے اندر بھی ہائپر یوریسیمیا کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کھانے صحیح کھا رہے ہیں پھر بھی آپ کو یورک ایسڈ زیادہ ہے تو پھر آپ کو اپنے کڈنی کے ٹیسٹ کرانے چاہیے، کڈنی کا پرابلم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اچھا، اب سب لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے اس کا کام صرف اور صرف، مطلب یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ یورک ایسڈ آپ کے جسم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جن لوگوں کو شوگر کا ہم کہتے ہیں ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، ان کی شوگر کم ہے۔ شوگر نارمل رینج میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، بڑھ گئی تو کام خراب ہے، کم ہوگی تو کام خراب ہے۔ یورک ایسڈ کا بھی ایسے ہی ہے، اگر یہ بڑھ جائے تو کام خراب ہے، بٹ نارمل رینج میں ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے یہ میں پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کے جسم کو قوت مدافعت دیتا ہے، لڑائی میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے امیون سسٹم کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ جسم میں آنے والے جو جراثیم ہیں ان سے لڑا جا سکے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کا
प्यूरिन बेसिस का आपके पट्टों की कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अब आ जाते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। बंदों के अंदर, मेल के अंदर ये 7.5 रेंज है, यानी 7.5 तक जो यूरिक एसिड है ये नॉर्मल रेंज है, और फीमेल्स के अंदर ये 6 तक नॉर्मल रेंज है। इसके डिफरेंस की वजह ये होती है बॉडी मसल मास मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज में थोड़े डिफरेंसेस है। अब ये किन लोगों को हो सकता है, यूरिक एसिड की ज्यादती किन्हें हो सकती है? एक तो मैंने बताया कि जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो, जो खाने जो उस तरह के खाते हो, और इसके अलावा जिनको ओबेसिटी हो, मोटापा हो, उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा जिनको जेनेटिक हो, जैसे शुगर का होता है ना कि खानदान के अंदर चल रही होती है, इसी तरह से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी होता है। अगर आपके बड़ों को यूरिक एसिड के इश्यूज रहते थे तो आपको फ्यूचर के अंदर या अभी आपको यूरिक एसिड के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स, आपकी जो हिस्ट्री है वो बताती है कि आपकी फैमिली के अंदर यूरिक एसिड के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। नेक्स्ट है जिनको हाइपरथायराइडिज्म हो, यानी कि थायराइड के अगर प्रॉब्लम्स हो उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ सकता है। सो अगर आपको थायराइड T3 T4 के जो आपके टेस्ट हैं अगर वो उसके अंदर वो रेज्ड हैं और वो ज़्यादा हैं तो आपको यूरिक एसिड के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर थायराइड हार्मोन को बहुत बड़ा हाथ होता है, और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा ना हो तो यूरिक एसिड की ज्यादती हो सकती है। नेक्स्ट ऐसे लोग जिनको पानी की कमी है। पानी अगर आप नहीं पीते, जो भी खाते हैं ना, तो तैयारी रखें कि आपको यूरिक एसिड के इश्यूज आएंगे। पानी की कमी सिर्फ यूरिक एसिड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करती है। सो यूरिक एसिड से बचने के लिए आपने पानी का इंटेक अच्छा करना है। जो मैंने पीछे खाने बताया था ना, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, आप मुझे कह रहे हो कि अगर ये नहीं खाने तो फिर पीछे बचा के अब वो खाएं, लेकिन बहुत कम खाएं, थोड़े से खाएं, साथ में पानी ज़्यादा पी लें। उससे क्या होगा, अगर आपके जिस्म में वो खाने यूरिक एसिड बनाएंगे भी सही, तो हमारे जिस्म में जब पानी आप ज़्यादा ले रहे होंगे तो वो आपके बॉडी से उस यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देगा। कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके पानी पीने की वजह से। सो डिहाइड्रेशन वाले जो पेशेंट हैं जिनको पानी की कमी हो, वो अपनी तैयारी रखेंगे, उनको यूरिक एसिड के इश्यूज आज नहीं तो कल शुरू हो जाएंगे। सो पानी का इंटेक अच्छा करना है, साफ पानी का खास तौर पे। नेक्स्ट, अब्रप्ट वेट लॉस। ऐसे लोग जो बहुत बहुत दिन भूखे रहे हैं और जी हम वजन कम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली उनका वजन कम हो रहा है, ऐसे लोगों के अंदर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके बॉडी के सेल की ब्रेकडाउन की वजह से प्यूरिन बेसिस बनती हैं या आपके खानों की वजह से बनती हैं। जब आप सडन वेट लॉस करते हैं तो बॉडी के सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड हो सकता है। सो वेट लॉस करें, बट तमीज़ के साथ, आराम आराम से, आपकी बॉडी जिसको बेयर कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन से जी कुछ नहीं खाया, जी वेट लॉस हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बट साथ में खाएं भी, जब भी खाएं, और कोशिश करें कि इस तरह का खाना खाएं जिसके अंदर यूरिक एसिड कम हो। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी, चावल, इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और अब हम क्या खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं। क्या उसके अंदर खा रहे हैं, हम गोश्त खा रहे हैं, हम दालें खा रहे हैं, हम ऐसे खाने खा रहे हैं कि जिससे हमारा वेट बहुत जल्दी कम हो जाए। कीटो डाइट के ऊपर हैं और कंटिन्यूसली वही खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वक्फों से खा रहे हैं। सडन वेट लॉस अगर करेंगे, यूरिक एसिड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो इत्तेदाल के साथ और आराम के साथ करना है। वेट लॉस करना अच्छी बात है, बट अगर आप एक तमीज़ के साथ और एक आराम से करेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, वरना वो उल्टा गले पड़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जिन लोगों को क्रोनिक स्ट्रेस हो, ऐसे लोग जिनको इतने अरसे से उनको हर टाइम वो टेंशन में रहते हैं। लाइक एक तो टेंशन है कि फैमिली और ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम्स हो, दूसरी टेंशन है कि फ़र्ज़ करें कि आप ऑफिस में आपको 4 काम मिल गए, 3 काम मिल गए जो इकट्ठे ही करने हैं, आज शाम तक ख़त्म करने हैं। अब आप एक काम कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, इकट्ठे मिला के कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जैसे घर आए हैं, 2 उनमें से काम बचे हैं वो भी कर रहे हैं, सुबह सो के उठे हैं, वो काम खत्म नहीं हुआ, आगे वाला और काम मिल गया। ये जो आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, हर टाइम आप स्ट्रेस में, इसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है। सो अगर आपको इस तरह के साइंस हैं तो कोशिश करें कि खुश रहें और अपने स्ट्रेस को कम करें। ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, बंदे की ज़िंदगी में 100 प्रॉब्लम होना, जब आपको हेल्थ का, सेहत का इशू आता है ना, फिर आपकी ज़िंदगी में एक ही इशू रहता है, एक ही प्रॉब्लम रहता है, आपको वो 100 प्रॉब्लम भूल जाते हैं। सो जो सबसे मेन जो चीज़ है ना वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं, इससे आपने प्रायोरिटी रखनी है। स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चलती रहेंगी, खुश रहना आपने। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी को हो जाए, अभी मैंने बताया कि कौन से खानों की वजह से हो सकता है, फिर मैंने बताया कि किन लोगों में हो सकता है ओबेसिटी, स्ट्रेस और इन चीज़ों को। अब जिन लोगों को हो गया उनमें कौन से साइंस आएंगे, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपके जितने जोड़ हैं, सारों के अंदर ना सुइयां चुभने वाली दर्द होगी।
जिनको यूरिक एसिड की ज्यादती होगी। लेकिन एक जोड़ ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो है बिग टो। बिग टो की जड़ के अंदर आपको दर्द होती है, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं गाउट। गाउट के अंदर इसी तरह का साइन आते हैं और गाउट आपको यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से होता है। अगर आपको गाउट है तो वो यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से। यूरिक एसिड को आपने कम करना है, अपने खाने इंप्रूव करने हैं, अपना पानी इंप्रूव करना है, पानी अपना ज़्यादा लेना है, और इसके अलावा स्ट्रेस कम करना है। वेट रिडक्शन अगर स्पीड से कर रहे हैं तो इतदाल के साथ करनी है, ठीक है। अब ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड की ज्यादती हो उनको हर टाइम थकावट रहती है। थकावट और फटीग एक बहुत बड़ा साइन है यूरिक एसिड की ज्यादती का। और ये जो गिल्टी सी नजर आ रही है ना, ये गिल्टी इसे कहते हैं टॉफाई फॉर्मेशन, TOPHI, टॉफाई फॉर्मेशन। ये ज्यादातर होता है यूरिक एसिड की ज्यादती के अंदर, ठीक है। टॉफाई फॉर्मेशन अगर आपको है तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा आपका रेज्ड होगा, अपना टेस्ट कराएं लाजमी। अच्छा, जब हमें इस तरह के साइंस आना शुरू होते हैं तो साथ में हमें यूरिनेशन ज्यादा होती है, वॉशरूम जाने की अर्ज ज्यादा होती है यूरिक एसिड के पेशेंट्स को। इसके अलावा जब हम सारा ये तो हो गया साइंस, जब ये सारे साइंस आते हैं फिर हम अपना टेस्ट कराते हैं, पता चलता है यूरिक एसिड ज़्यादा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हम मेडिसिन देते हैं जिसमें डिफरेंट मेडिसिन आ जाती हैं, यूरिको है। या अब बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर को मिले, अपने डॉक्टर को मिलकर अपने साइंस बताएं ताकि वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन दे सकें। मोस्टली लोग मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई भी बताएं। दवाइयाँ मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि हर बंदे को डिफरेंट मेडिसिन की ज़रूरत होती है। उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स है उसको यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है और साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है तो उसे वो दवाई नहीं देनी कि जो उसके हार्ट के ऊपर कोई भी इशू करे। ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड है साथ में शुगर भी है तो उन्हें ऐसी दवाई नहीं देनी कि उनकी शुगर इंक्रीज़ हो जाए। सो इसलिए अपने डॉक्टर को मिलके आपने अपनी दवाई जो अपनी स्पेसिफिक यानी कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी है तो आपने अपने लिए लेनी है। सो ये तो होगी मेडिसिन की बात। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा वो खाने जो घर में खाने हैं जिससे आप बिल्कुल यूरिक एसिड को मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आप लेते हैं आपको यूरिक एसिड को जिस्म से रश आउट करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, कद्दू को अपने खानों के अंदर ऐड करना है, ठीक है। कद्दू में यूरिक एसिड नहीं होगा और ये आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ब्रोकली को आपने ऐड करना है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट ऐसे जैसे माल्टे हैं, जैसे लीमू है, ऐसे खाने हैं जिसके अंदर सिट्रस एसिड है, वो यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जिसम से रश आउट कर देगा यूरिक एसिड को। इसके अलावा बेरीज, बेरीज के अंदर आ जाती हैं, ब्लू बेरीज हैं, चेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं। जामुन खाया करें, इसमें यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छा रहेगा और यूरिक एसिड को रश आउट करेगा आपकी बॉडी से। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, जो पीछे खाने बताएं, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, पानी का इंटेक अगर साथ में रखेंगे, ये जो खाने हैं जितने भी यूरिक एसिड बनाएंगे आपके जिस्म से रश आउट हो जाएगा। ये जो खाने हैं ना, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, इन खानों को जब भी खाना है आधी प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है। अगर यूरिक एसिड का इशू नहीं है तो एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना। ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, जी हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, यूरिक एसिड आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अगर आप साथ में पानी ले रहे हैं तो फिर ये जिस्म से रश आउट होता रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन इसके अंदर ये आ जाती है कि अगर किसी को इशू हो किडनी का, गुर्दों का, जब वो एक ऑर्गन जिसने जिस्म से निकालना है वही सही काम नहीं कर रहा है, फिर प्रॉब्लम आती है। सो वो उन लोगों के लिए एक एक्सेप्शन है, उन लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। उन्हें चाहिए कि वो अपने किडनी को पहले ठीक कराएं, ठीक है, किडनी का ट्रीटमेंट कराएं ताकि यूरिक एसिड को निकालने वाली जो हमारा ऑर्गन है वो ठीक होगा तो ही जिस्म में चाहे पानी आप ले रहे हैं या ये खाने ले रहे हैं तो ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा कुकम्बर, खीरा, खीरा जो इसके अंदर पानी बहुत अच्छा होता है, यूरिक एसिड को निकालने में बहुत हेल्प करता है ये। और कुछ एविडेंसेस ये भी हैं कि जो डार्क चॉकलेट है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप डॉक्टर साहब ने कहा ना कि डार्क चॉकलेट खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा जाए। ये ना हो कि आपको शुगर ही बढ़ जाए, बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है, तो आपने इतदाल के साथ यूरिक एसिड के मैनेजमेंट के लिए अपनी डाइट के अंदर इसको डार्क चॉकलेट को भी ऐड करना है। सो ये डिफरेंट खाने हैं जो मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपको बताए हैं कि जिससे आप यूरिक एसिड को मैनेज कर सकते हैं। कुछ वो खाने बताए हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है और कुछ इस तरह के सिम्टम्स बताए हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड के साइंस आते हैं लोगों के अंदर। अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू है कोशिश करेंगे इन चीज़ों को फॉलो करें जो मैंने अपनी इतनी डिटेल से बताया। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें और अगर इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।